हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, कल हम बोले थे जे लाइन बाय लाइन द विंड एंड द सन, ये जो कहानी है इसको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। देखो, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। तो खोलिए चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 16 তাহলে কি বললাম 16 পাতা 2 নম্বর চ্যাপ্টার, যেটা তোমাদেরকে আমি লাইন বাই লাইন পড়ে প্রত্যেকটা শব্দের মানে এবং প্রত্যেকটা লাইনের মানে বোঝানোর চেষ্টা করব। আমি গার্জেনদেরকে বলবো, বাচ্চারা তো পড়তে পারবে না, তাই আপনারা কিন্তু বাচ্চাদেরকে আমার এই গল্প পড়ার এবং অর্থ বোঝানোটা শুনে বাচ্চাদেরকে অবশ্যই আপনারা একটু একটু করে বোঝানোর চেষ্টা করবেন, যাতে ওরা পরিষ্কার করে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তো চলুন, আমি কিন্তু পড়ছি, একটু মন দিয়ে আপনাদেরকেও শুনতে হবে, যাতে আপনারা বাচ্চাদেরকে একটু শোনাতে পারেন। ताले देखो बच्चा, मम्मी पापा के साथ साथ आपको भी सुनना है ना। तो चलिए मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। हाँ, देखिए क्या लिखा है, ONE1DAY डे। वन डे द नॉर्थ विंड मतलब उत्तरी हवा, अर्थात उत्तरे हवा। उत्तरे हवाटा कि जे हवाटा उत्तर दिक थेके आसे एबं दक्षिण दिके चले जाए, माने उत्तर दिक थेके आसा बातासटाके आमरा बोली नॉर्थ विंड। एंड द सन गट इनटू एन आर्गुमेंट। ताहले कि माने हलो जे एकदिन उत्तरे हावार साथे सूर्य एकटा तर्के नामलो, अर्थात दुजनकार मध्य एकटू तर्कातर्की हलो, अर्थात माने कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस मुद्दे पर दोनों में बहस शुरू हो गया। फिर देखिए, दे वांटेड टू प्रूव हु इज स्ट्रॉन्गर। बहस का मूल माने विषय क्या था, माने कौन विषयटा निये ओদের तर्क शुरू हलो। तर्केर विषयटा होच्छे के बड़ो, सेटाई होच्छे ओদের জানার বিষয়। মানে এখানে আমরা গল্পটা পড়েই আমরা জানতে পেরেছি বাতাস কিন্তু খুবই অহংকারী। বাতাস अपने हवा अपने आप को बहुत ही माने माने अहंकारी समझता है। वो सोचता है कि मेरा जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, सूरज भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन सूरज कभी भी अपना घमंड नहीं दिखाता। ये बहुत ही हम्बल है, बहुत ही जेंटल है। এই গল্পতে এটাও আমরা জানতে পারছি যে যারা সত্যিকারের মানে বড় হয় তারা কিন্তু কখনো কাউকে অহংকার করে না, কারোর সাথে নিজের অহংকারকে ফলার করে না বা প্রকাশ করে না, বা দেখাতে যায় না যে আমি বড়, আমি এই করতে পারি, আমি ওই করতে পারি, এটা কিন্তু বলে না। তো চলো আমরা পড়াশোনা শুরু করি। 2 লাইনটা পড়েছি, এরপর দেখো আছে দ্য নর্থ উইন্ড সেড। উত্তরে হাওয়া বলল, কি বলল, দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং। उत्तरे हवा की बोलছে, वो बोलছে যে সে খুব शक्तिशाली। उत्तरी हवा क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ताकतवर है। कैसे, किससे ताकतवर है, सूरज से। He said that he could make anyone do as he wanted। वो बोलছে যে ও যে কোনো সময় যে কোনো কাজ করতে পারে। হি লুকড ভেরি প্রাউড। এবং এই বলে সে নিজেকে খুবই অহংকারী বা মানে ঘমন্ডি মানে দেখালো, मतलब নিজেকে সে খুব বেশি
অহংকারী প্রকাশ করলো। দ্য সান জেন্টলি সেড দ্যাট অল দিস ইজ অফ নো ইউজ। কিন্তু সূর্য খুব নম্রভাবে, जेंटली मतलब बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही शांतভাবে বলল যে এগুলো তো কোনো ব্যাপার না, দ্যাট অল দিস ইজ অফ নো ইউজ, মানে তুমি যে কথাগুলো বলছো এগুলো মানেই হয় না, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ही सेड ग्रेट पावर इज इन बीइंग হাম্বল অ্যান্ড জেন্টল। দেখো সূর্যের মধ্যে কিন্তু সত্যিকারে খুব বেশি পাওয়ার আছে, কিন্তু তবুও সূর্য কিন্তু নিজের পাওয়ারকে কারো কাছে দেখায় না। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমরা এই যে ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জার দুটো লাইন পড়লাম, তারপরে সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জাতে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা লাইন পড়লাম, কিন্তু আরেকটুকু পড়াবো, তারপরে এখান থেকে তোমাদেরকে একটু 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 করে মানে কোশ্চেনের ব্যাপারে আলোচনা করব এবং ওয়ার্ড মিনিংগুলো অবশ্যই বলে দেব। ঠিক আছে, চলো তাহলে আর একটু পড়িয়ে নিই। ও সান, ও সান, ইউ থিঙ্ক ইউ আর গ্রেটার। সূর্যকে মানে অহংকার দিয়ে বলছে, কে বলছে? বাতাস। জয় সূর্য, এই সূর্য, তুই কি নিজেকে খুব বড় মনে করিস? নাথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ক্যান বি ওন ওভার ইফ ইউ আর স্ট্রং। ভাবিস না যে এই পৃথিবীতে, এই দুনিयाते তুই বেশি शक्तिशाली, तुम्हें ज़्यादा ताकतवर हो, इतना मत समझो। अरे हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हम तुमसे भी ताकतवर ज़्यादा हैं। किसने कहा? हवा ने कहा। ओनली आई कैन डू दैट। हवा ने कहता है जे मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, एकमात्र আমি सब কিছু করতে পারি, तुम नहीं कर सकते हो। All you can do is just warm and warm। WARM क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? वार्म। वार्म माने कि उष्ण अर्थात गर्मी। एंड वार्म सेड द नॉर्थ विंड मॉकिंगली। नॉर्थ विंड बहुत ही मजाक करते हुए कहा, तुम क्या, तुम सिर्फ गर्म कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा वो हिम्मत नहीं है कि हमसे हम जो काम कर देंगे वो तुम कर पाएगा, इतना मत सोचो। किसने कहा? हवा ने कहा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम आज क्या किए? रीडिंग पढ़ाए हैं आप लोगों को, मेरे साथ साथ बोलना भी पड़ा, बोले भी हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में आप लोगों को कॉपी में लिखा देंगे। तो ठीक है, चलो तो 1 2 और 3 ये 3 स्टेंजा अच्छा से पढ़ा दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो पहले हम वर्ड मीनिंग समझाएंगे। तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है? बोलो। स्ट्रॉन्गर माने कि स्ट्रॉन्गर माने होच्छे शक्तिशाली, ताकतवर। ठीक है। प्राउड, PROUD, प्राउड। प्राउड माने कि अहंकार, गौरवित। घमंडी, किसका ज़्यादा घमंड है? उत्तरी हवा का, हवा के पास। द सन जेंटली, ये GENTLY, जेंटली माने कि, जेंटली माने होच्छे नम्र भावे, जेंटली माने होच्छे भद्र भावे। फिर देखो हम्बल, HUMBLE, हम्बल माने कि, हम्बल माने होच्छे विनयी व नम्रता। तो इस तरह और भी कुछ वर्ड है, हम मीनिंग समझा देते हैं। ग्रेटर, देखो GREATER, ग्रेटर माने कि, ग्रेट माने बड़ा होता है, ग्रेट का ये कंपैरेटिव फॉर्म है। ग्रेटर माने मैं तुमसे बड़ा हूँ। जब दोनों के अंदर, दोनों के बीच कंपेयर होता है
तो उस समय माने बड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर बोलते हैं। नथिंग, NOTHING, नथिंग माने कि, नथिंग माने किछुई ना, कुछ भी नहीं। वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, पृथ्वी यानी पूरा दुनिया। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है शक्तिशाली यानी ताकतवर। तो स्ट्रॉन्गर, प्राउड, हम्बल, नथिंग, ग्रेटर, वर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग, इतना सारा वर्ड यहाँ से हम लोग पाएँ जिसका मतलब हम बता दिए हैं। आप लोगों का काम होगा इसको कॉपी में उतार के साइड में हिंदी में या बांग्ला में इसका अर्थ लिखना है, फिर इसको अच्छा से पढ़ना है। तो ये आज हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, आप लोग सिर्फ पढ़िएगा, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोगों को हम समझाएंगे। तो चलिए आज का क्लास भी आज यहीं हम ख़त्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट दिन जब आएंगे थर्ड क्लास को, किसका थर्ड क्लास, द विंड एंड द सन का थर्ड क्लास हम नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।